आप सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसा कि आपको पता है, इस सेशन का नाम रूट्स एंड विंग्स से रखा है हमने। और आज के सेशन है वो कम्युनिकेशन पे होने वाला है। और जो कम्युनिकेशन टॉपिक है, इसका जो हमने एक पर्पस वो ये रखा था, ये सोच के रखा है कि वर्क प्लेस हो या लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में जो कम्युनिकेट करना बातों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं और उसे किस तरह से कहते हैं और उसका क्या असर पड़ता है और उसका क्या फीडबैक मिलता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप किसी वर्क प्लेस पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो आपके प्रोफेशनल रवैये को भी अच्छा से दिखाता है और ये बताता है कि आप कितने अच्छे से सक्षम है बात करने में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सेशन रखा है। और जैसा कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको पहले बता भी दिया गया कि अपने आप माइक को म्यूट रखना है और आवश्यकता पड़ने पर उसको ऑन रखना है। Hmm. बिना वक्त गवाए, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रेसिडेंट ज्योतिका कालरा मैम, लाइक टू इनवाइट विक्की गौतम। Abhishek, पहले I think I will request each one of you to please open your camera or video. यू कैन विक्की, यू कैन स्टार्ट नाउ। Good evening, everyone. And my name is Vicky, and thank you so much, Mr. Abhishek and Saksham Rozgar Society, for giving me this opportunity to speak today. And I truly appreciate the chance to introduce Mr. Jyotika Kalra ma'am. Ms. Jyotika Kalra ma'am is an advocate on record Supreme Court of India. She was a member of the National Human Rights Commission. She is president of Saksham Rozgar Society and is committed to cause of knowledge and skill development of youth. Yes, Abhishek. Thank you. Thank you, Vicky Gautam. Now I'd like to invite again Vicky Gautam for the introduction of a resource person, Mr. Subhas Malik, sir. Thank you, Abhishek. I got 1 minute late, could not log in properly. Vicky, Anyway, you can start the introduction. Sir, पहले introduction कर लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक। Once again, thank you so much, Mr. Abhishek. And again, I truly appreciate the chance to introduce Mr. Subhas Malik, sir. Mr. Subhas Malik, sir, is having a 50 years of diversified experience, a vision of a passionate artisan, and energy of a youthful comrade is how can one introduce Subhas in a crisp manner. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature, a certified trainer and a motivational speaker. Subhas Malik has 100+ top MNCs and Indian brands, universities in a client list. He has trained about 200,000 people in universities, institutes, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and banking postgraduate diploma in NIIT University. Subhas Malik, a rich preserver of consolidated 5 decades of diversified experience, a vision of a passionate artisan and energy of a youthful comrade is how one can introduce Subhas in a crisp manner. Being a catalyst to the cause of transforming lives and empowering people through mentoring and delivering personal development and professional excellence. Programs on a behaviorally skills with inside out approach and discovery method. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature, and a motivational speaker at stage and the dais. He has trained about 250,000 plus people in university, institute, and corporates. Thank you so much. मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्लास को शुरू करने के लिए और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक, जैसे हमने सोचा था कि हम एक थोड़ा सा बड़ा इंटरेक्टिव फॉर्म में सेशन को रखेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस से शुरुआत करूंगी। सुभाष जी से हम उनका जवाब चाहेंगे और फिर सभी स्टूडेंट से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पेंसिल और कॉपी तैयार रखें। आपके जहन में जो अपने कम्युनिकेशन को लेके जो चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि कहाँ आपको दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में, संचार में, तो वो आप सुभाष मलिक जी से पूछ सकते हैं। तो शुरुआत में हम कुछ सवाल जवाब के तौर पर इस सेशन को चलाते हैं। तो सुभाष जी, अगर कम्युनिकेशन का हिंदी में तर्जमा करें, उसको हम ट्रांसलेट करें तो संचार होता है। संचार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब एक स्टेशनरी
चीज नहीं है, मूवमेंट है यहाँ से वहां पहुंचना। तो एक अगर मोटा मोटी हम सोचे तो वो कम्युनिकेशन है क्या, मतलब कब कैसे कहें कि कम्युनिकेशन बिल्कुल हुआ। ठीक है ज्योतिका जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फंडामेंटल साइंटिफिक है। होता क्या है कि जो पुरानी परिभाषा थी जो 500 साल से चल रही है सोसाइटी में या हमारे एजुकेशन में, वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और कम्युनिकेशन, तो इसी को हम बोलते थे। लेकिन अब जब ये दुनिया जो चेंज हुई 2010 के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी चीजें नई आ गई, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी नई बन गई। वो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन नई ऐसे है कि ये एक ऐसा पावरफुल थ्रेड है, कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, जो मैजिकली हमें कनेक्ट करता है अमंग पीपल, पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली और सोशली। 4 एरियाज हैं, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और सोशल लेवल पे। ये हमारा आज की डेट में कम्युनिकेशन का मतलब है। जी। और अगली जो हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, मतलब अगला जो हमारा लगता है मुझे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्यों जरूरत है कम्युनिकेशन की, क्या मतलब क्या ऐसी बात आन पड़ी है कि हमें कम्युनिकेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या उसको जानने से क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन के बारे बिल्कुल में। ठीक बात है। जैसे आज का हमारा होता क्या सेशन है है, कि तो वी हो क्या ह्यूमन जाएगा बीइंग्स, अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में जान भी लेंगे तो। करेक्ट, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सोशल, फंडामेंटल है, एंड वी आर इमोशनल। दो चीजें पर्सनल लेवल पे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस। हम्म। तो होता क्या है कि कम्युनिकेशन के बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते ना। और यदि कम्युनिकेशन हमारा परफेक्ट नहीं हो, हम जिसे वर्ड बोलते हैं सोसाइटी में अपनी बोलचाल में कि इम्पैक्ट नहीं हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कम्युनिकेशन का आपको, जो नॉर्मली हर घर में आपको मिल जाएगा बच्चों के साथ। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, अपने आप बाहर जा रहे हैं, चाहे वो दोस्त के साथ ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, तो रेडी हो गए जाने के लिए। तो अब जरूरी नहीं है कि बताएं मम्मी पापा को कि मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी पूछती है कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं दोस्त साथ खेलने जा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछा, कम्युनिकेशन है, क्योंकि मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा कहाँ जा रहा है, पता करना है, कम्युनिकेशन ही है। लेकिन होता क्या है, बच्चा आधा जवाब देता है, मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर मम्मी पूछती है कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे। ये 3 क्वेश्चन और आ गए। अब 3 क्वेश्चन का वो एक एक करके पूछेंगे, एक एक जवाब देगा। तो मतलब क्या हुआ कि खेलने जाना है और फिर वापस आना है, ये हम एक ही बार में यदि बता दें तो वो कम्युनिकेशन हमारा इम्पैक्टफुल हो जाता है कि मैं इस दोस्त के साथ इस ग्राउंड में जा रहा हूँ और आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा और ये खेलना है वहां पे। तो कम्युनिकेशन पूरा हो गया। ये होता है इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन, परफेक्ट कम्युनिकेशन। पर जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है इसमें ऐसा होता नहीं है। यदि सुबह से शाम तक हम 100 टाइम ऐसा करेंगे तो खुद को इरिटेशन भी होती है, परेशानी भी होती है कि एक बात का आंसर पूछने के लिए 4-5 क्वेश्चन पूछने पड़ गए। इरिटेशन तो होती है, कोई भी हो, चाहे वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ये सबसे बड़ा असर हमारी लाइफ में पड़ता है कम्युनिकेशन में। अब यदि हम बात करें, ये पर्सनल या फैमिली लेवल पे हो गया, सिमिलरली सोसाइटी लेवल पे, सिमिलरली बिजनेस और प्रोफेशनल लेवल पे भी, आई मीन जॉब में भी। अब जॉब में भी काम करते हैं, तो यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन भी पूरा होना चाहिए अपने आप में और उसका आंसर भी पूरा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो वो परफेक्ट कम्युनिकेशन होता है जिसका हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ता है। और अब अगला सवाल जो हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो सवाल जवाब पूरे हो जाने चाहिए, एक ही बात में पूरा सवाल आ जाए। तो अगली बात ये आती है कि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब क्या महत्व है, जिससे हमने शुरू किया कि कम्युनिकेशन क्या है और फिर जरूरत क्या है उसकी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में, जैसे आपने इमोशनल सोशल वो सब क्वेश्चंस बताए। तो पर्सनल, इम्पोर्टेंस क्या प्रोफेशनल, है सोशल, कम्युनिकेशन। इमोशनल, हाँ। यही जरूरत है ना। ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल पर्सन, सोशल पर्सन। हम्म। आप बताइए, यदि कोई बिल्कुल बात ना करे तो कैसा लगता है फिर हमें देखकर या उनके साथ रहकर, चाहे वो हमारे घर में हो, मोहल्ले में हो या सोसाइटी में हो, ऑफिस में, कहीं भी हो, कोई बोले ही ना, बिल्कुल किसी भी तरह से कम्युनिकेट ही ना करे, तो कैसा फील होगा। दैट क्रिएट्स लोनलीनेस। कम्युनिकेशन से ही तो, क्योंकि जो मेरी पहली लाइन बोली थी ना, इट कनेक्ट्स अस ऑल मैजिकली। ये हमारा कनेक्ट अमंग पीपल है, माइंड टू माइंड कनेक्ट है।
जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। वेरी गुड, आई मीन वेरी यूजफुल आंसर और एक्सप्लेनेशन। अब मैं नेक्स्ट हम आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जी। कि कम्युनिकेशन होगा कैसे, मतलब हु ऑल आर रिक्वायर्ड, हु आर द पार्टी टू दैट, मतलब जो वार्तालाप है, संचार है, उसके कौन से जी अहम घटक हैं जिनके होने पर ही कम्युनिकेशन हो पाएगा? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कम्युनिकेशन के दो फेज में है, दो हिस्सों में है। एक तो कम्युनिकेशन के हम बोलते हैं पार्ट्स क्या हैं, बोले हम्म एक तो जो बोलने वाला, एक सुनने वाला। हम्म यदि वर्बल कम्युनिकेशन है तो हम्म यानी किसके साथ हम एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रही हैं या हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो दो हम्म लोग चाहिए उसमें। जी उसके अलावा दो लोगों के साथ साथ एक लैंग्वेज की सबसे बड़ी चैलेंज आता है हमें, कि हम्म जिसे हम बोलते हैं मीडिया। हमारा मीडियम क्या है बात करने का। दूसरा हमारा चैनल क्या है, कि हम बात करते कैसे हैं, फेस टू फेस, आमने सामने। पुराना ट्रेडिशनल वे तो वही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया, टेलीफोन आ गए, वायरलेस आ गया, तो वो हमारा चैनल बन गया कि हम कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, तो इस तरह से ही दो कैटेगरी बन जाती है हमारी कम्युनिकेशन की, वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल में क्या होता है, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वर्बल का हिस्सा है। हम्म नॉर्मली हम समझते ये हैं कि जो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब स्पोकन से है, बातचीत के दौरान बोलचाल के। रिटर्न कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो, वो लेटर लिखा हो, पेपर पे लिखा हो, इलेक्ट्रॉनिक लिखा हो, व्हाट्सएप में हो, मेल हो, दैट इज ऑल वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है हिस्सा इसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे दिखते हैं, बना सकते हैं, बोलते कुछ नहीं है, वो शक्ल से पहचान लेते हैं, गुस्से में है, प्यार से बात कर रहा है, दैट इज हाई इम्पैक्ट। और दूसरा होता है हमारा बॉडी मूवमेंट, लिम्ब मूवमेंट। उससे भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम खड़े कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सिर हिल रहा है मेरा, तो बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो लगता है कि मैं इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हूँ। यदि मैं स्टैचू की तरह बैठ जाऊँ तो कैसे लगेगा, मैसेज तो गया नॉन वर्बल में। तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहले नहीं था, वो भी 2010 के बाद आया है, वो है साइलेंस। हम्म साइलेंस अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और होता क्या, देखिए, एक मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा सब लोगों को, कि यदि किसी ने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, और सामने वाले जो बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, 10-12 लोग बैठे हैं, ये भी हमारे लोग बैठे हैं, 36 लोग हैं यहाँ पर। मैं कोई क्वेश्चन सर, पूछूं, 41 लोग बैठे हैं। अच्छा 41, कोई नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा ठीक से, एनीवे, गुड थिंग। अब 41 लोग बैठे हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछूं किसी से और मुझे कोई आंसर ना दे, तो उसके 12 मतलब निकलते हैं। फिर मैं जो मर्जी समझ लूं, क्योंकि वो फ्रीडम तो मुझे दे दिया आप लोगों ने भाई। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है। मुझे नहीं देना आंसर, हम्म मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मेरे को क्या, जो करना कर लो, नहीं बोलता। ये सारा नेगेटिव हो गया है। पॉजिटिव क्या होता है, आई डोंट नो, तो बंदा कहता चुप रहो, बजाय कहने के आई डोंट नो, चुप रहो, समझ जाएंगे अपने आप कि उनको पता नहीं है इसलिए भूल नहीं रहे। इस तरह से 10-12 मतलब निकलते हैं ये। तो ये दो हिस्से कम्युनिकेशन थे, वर्बल नॉन वर्बल। तीसरा आ गया नॉन वर्बल में, जो साइलेंस है। फेशियल एक्सप्रेशन, ये नॉन वर्बल के तीन हिस्से हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट और साइलेंस। और वर्बल में दो थे हमारे, रिटन कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन। अब अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब जो मोटा मोटी मैं जानना बिल्कुल। चाहती हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे या उनके लिए यूजफुल हो सकता है ये बहुत कि जरूरी है। जैसे अब जैसे मैंने इनिशिएट करना है कम्युनिकेशन, मैंने शुरुआत करनी है कम्युनिकेशन जी की, तो पहले मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बिल्कुल, कहना चाहता हूँ, है ना? तो बिल्कुल ठीक है। क्या वो मेरे जहन में और मेरे दिमाग में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो आएगा कि मुझे क्या कहना है और कैसे कहना है। मैं और बता देता हूँ फिर आपको। नहीं, और उस वही मैं जो कह रही थी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद वो जो मैं बात कहना चाहती हूँ, मैंने जी ये पहले सोचे मैं क्या कहना चाहती हूँ, और दूसरा ये भी कैसे कहूंगी, क्योंकि वो डिपेंड जी करता है मैं किससे बात कर रही हूँ, मतलब ठीक मैं बात है, अपने स्टाफ से बात कर रही हूँ या मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ, तो ठीक कैसे बात है। कहूंगी। और तीसरी बात कि वो जो जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे, उसको जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ में आए जैसे आपने मीडियम की बात की, लैंग्वेज की ठीक बात बात की, तो वो बिल्कुल ठीक। सब चीजें हम कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे करते हैं,
और किस तरह से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है? आपसे आपके विचार। जी, इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले वो शुरू कहाँ से होता है, उसकी साइंस क्या है कम्युनिकेशन में। पहली साइंस है फीलिंग। हमारे अंदर पहले फीलिंग आती है, उस फीलिंग से हमारे अंदर थॉट्स बनते हैं, थॉट्स को हम कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में। अब वर्ड्स को हम या तो स्पोकन में जाएंगे या रिटन में जाएंगे या नॉन वर्बल भी चले जाएंगे। सपोज किसी को गुस्सा दिखाना है तो मुंह बना लेंगे ना हम, हमारे फेशियल से दिख जाता है गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, फीलिंग से शुरू हुआ था। यहां से शुरू होता है कम्युनिकेशन। और कंप्लीट कब होता है, जब हमें उसका वापस एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो उसको समझ में आया, वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो एक्नॉलेज करेगा तो हमें कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का। अब बैरियर होता है इसमें, अगले का इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, एनवायरमेंट है कि नहीं है, शोर शराबा हो रहा है, आवाज ही नहीं आती, डिवाइसेस ठीक है कि नहीं है, यदि हम इलेक्ट्रॉनिकली या जैसे हम लैपटॉप पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो अभी मेरे ये लैपटॉप नया वाला है लेकिन इसमें आवाज कम है, पुराना वाला आवाज आया थी, और ठीक है मैंने अपने क्लोज रख लिया है तो मैं सुन पा रहा हूँ। फुल वॉल्यूम है, सोल्यूशन नहीं है, या तो एक्स्ट्रा स्पीकर लगाऊं। तो अब ये एक बैरियर हो गया एक तरह का। ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन का साइकिल पूरा करती हैं। इस तरह से होता है सब। अरे इसी इसी सवाल से एक सवाल जो निकलता है, जो आपने वर्ड यूज किया एक्नॉलेजमेंट, जी उस पे आपका थोड़ा तवज्जो चाहते हैं कि कैसे इंश्योर करें कि जिसको मैंने जो कहा था वो जी सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ गया। मतलब जो एक्नॉलेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जो आपने जैसे जी बोला कि वो कंप्लीट मानी जाती है, तो उस जी एक्नॉलेजमेंट को हम कैसे इंश्योर करें, कैसे पता लगाएं कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। जो मैं कहना इसमें चाहता होता यह है कि सामने वाला क्या अपने आप नहीं बोलता है, एक नॉर्मल ट्रेंड है, हूँ। तो हम क्या करते हैं, पूछ लेते हैं भाई। जैसे मैंने अभी ये बताया तो मैं पूछ सकता हूँ ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या कहा है, तो अब सब एक्नॉलेज करेंगे ना, हाँ या ना। नहीं आया तो क्वेश्चन आना चाहिए, भाई ये चीज समझ में नहीं आई, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बोला तो जो कहा गया है समझाया गया है वो समझ में आ गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया ये। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट अगेन वो भी कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल। सिर हिला के नॉडिंग बोल सकते हैं, आ गई समझ में। एक्सेप्टेंस नजर आ गई, फेशियल से आ गई, स्माइल दे दी समझ में आ गई, सिर हिला दिया समझ में आ गया, मुंह से बोल दिया हाँ जी ठीक है ओके, एक्नॉलेजमेंट है। पर वही कई दफा ऐसा अपने खुद हमारे जीवन में ऐसा हमारे साथ होता है कि जी सामने वाले को समझ आता नहीं है, पर वो शायद नॉड कर देता है या सिर हिला देता बिल्कुल है। ठीक है, ये तो होता है। पर होता बाद में पता चलता है कि भाई मैंने तेरे को ये बताया था कि शाम को 6 बजे जाके दूध लेके आना है, और तुमने ठीक हाँ है भी करी थी। और फिर जब अगली बात हुई कि तुम दूध नहीं लाए, तो कह रहे जी मैडम आपने तो कहा ही नहीं था। तो ठीक इस है। तरह से वो कैसे, मतलब दो एक चीजें बार समझ में तो आती है कि जैसे आपने बोला कि एक्नॉलेजमेंट होगी, सिर हिला दिया, सब कर दिया, पर फिर यदि कैसे इंश्योर ऐसा, करें? हाँ जी, ऐसा रिजल्ट आता है ना तो समझ में आ गई कि बंदा कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं था, जब आप बात कर रहे थे तो इन्वॉल्व नहीं था वो। तो ओके। कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना पड़ता है, मतलब आपको फोकस और कंसंट्रेशन ध्यान देना पड़ता है, एक्नॉलेज करते साथ साथ बीच बीच में। यदि लंबी बात है, छोटी है तो हाँ जी ठीक है ओके, लेकिन ये उसकी तरफ से हो गया। पर जो बोलने वाला उसकी तरफ से क्या होता है, उसको हम बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा साइंटिफिक टूल है ICQ। हम्म। नॉर्मली ये इंस्ट्रक्शंस जब देते हैं ना कि ऑफिस में, तो वहां से निकला है कारपोरेट से ये, हम्म। इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस, ICQ बोलते हैं। तो बोलते हैं ICQ कर लीजिए आप, यानी मैंने कोई चीज बताई तो मैं पूछूंगा अच्छा मैंने क्या बताया, जरा रिपीट कर दीजिए मुझे आप। तो जो रिपीट किया उन्होंने वर्बाटिम, यानी ओरिजिनल वे में जो समझा वही करेगा। अब उसमें हो सकता है मेरे हिसाब से कोई गलत हो तो मैं उसे ठीक करवा दूंगा उसे, कि ऐसे नहीं ऐसे बोला था। वो कंफर्म हो गया, एक्नॉलेज भी हो गया और उसको समझ में आ गया, हमें इंश्योर हो गया कि उसको समझा पाए हम, क्योंकि हमने रीचेक कर लिया उसको। रीचेकिंग रिव्यू सब उसी का हिस्सा है, पर साइंटिफिक नेम कम्युनिकेशन में ICQ बोलते हैं इसे। पर इसके साथ ही एक और सवाल उठता है कि क्या जी ये ऑफेंडिंग तो नहीं हो जाता किसी को? वो सोचता है कि सामने वाला, ये मैडम तो अपने आप को बहुत होशियार समझती है और मुझे बहुत नालायक, ये पूछ रही है मेरे से कि क्या समझ में आया। तो हाँ, क्या ये ये थोड़ा तो ये जो क्वेश्चन ऑफेंडिंग है हो ना सकता आपका, ये है? हाँ। बड़ा थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है वैसे। ये मैं बताता हाँ। हूँ कैसे। जब इक्वल लेवल के लोग होते हैं ना, वहां तो ये चीज आती है। हम्म। ओके। यदि मैं एक अपने वाले लेवल के प्रोफेशन से बात करूं या छोटे से भी करूं, लेकिन वो प्रोफेशनली हो,
तो वो ईगो की वजह से ही क्वेश्चन आ जाता है, हम्म मेरे से कंफर्म क्यों कर रहे हैं ये। मेन चीज ये है। अच्छा, आपने चीज देखी होगी, ऑफिस कम्युनिकेशन जो होता है ऑफिशियल, नॉर्मली क्या होता है, मेल्स में, व्हाट्सएप में हम नीचे लिख देते हैं प्लीज एक्नॉलेज, प्लीज एक्नॉलेज रिसीप्ट, मतलब जो कहा है वो समझ में आ गया, एक्नॉलेज कर लिया। मेल का जब व्हाट्सएप में भी हो जाता है ऐसे ही, प्लीज एक्नॉलेज, समझ में आ गया, आपने देख लिया, समझ लिया, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ये है। लेकिन प्रोफेशनली प्रॉब्लम आती है, वर्बल में ज्यादा आती है, रिटर्न में नहीं आती नॉर्मली। तो अगला नॉन वही वर्बल सवाल आ गया, वही सवाल आ गया, क्योंकि हम प्रोफेशनल और हम इंटरपर्सनल और सब कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन की। जैसे अभी आपने बोला कि रिटर्न कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके फ्रॉम योर आंसर दैट व्हाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। लिखित में जो संवाद होता है उसकी क्या महत्व है? सबसे पहले तो देखिए, आप एक एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, सबसे पहले तो लीगल ऑथेंटिसिटी बन गई उसकी। whatever I have written, I'm responsible for it. एक्सेप्टेंस होगी ना, मेरी लीगल डॉक्यूमेंट हो गया वो। रिटर्न सबसे पहला तो यही होता है। दूसरा, ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, लंबे समय तक रिटेन किया जा सकता है। तीसरा, इसमें डेविएशन नहीं होता कि मैंने तो इस आपने ये कहा, मैंने ये समझा। हाँ, वो होते नहीं ना, उसे कंफ्यूजन ही नहीं है कोई, हाँ। क्लियर है। तो एक बार आप रिपीट थोड़ा सा कर दीजिए इसको, मैंने भी नोट किया है, पर अच्छा, नहीं, आप तीन करेंगे तो चीजें बता बेहतर। देता हूँ, और तीन मैं चीजें बताता चाहूंगी हूँ ये सभी जो हमारे स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स जी। है, प्लीज नोट करें, क्योंकि हमारा ये हमेशा मोटो रहता है कि ब्लीकेस्ट ऑफ द इंक इज फाइनर देन अ बेस्ट ऑफ द मेमोरीज। ये इंसिस्टेंस हमेशा रहती है कि जो लिखा होता है वो हमेशा रहता है, और आपकी जितनी मर्जी याददाश्त हो वो हमेशा धोखा दे वो सकती है। लॉन्ग टर्म रिटेन होता है, ठीक है। हाँ, पहला तो सबसे होता है कि लीगल सैंक्टिटी होती है उसकी। एक बार, हाँ। इट इज अ लीगल और डॉक्यूमेंट, आपने हाँ रिटर्न दे दिया, दैट इज लीगल, वो हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई वो, क्योंकि जी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी, दूसरा होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता सामने वाले को, रिसीवर को। हाँ। होगा तो वो डाउट क्लियर कर लेगा उसमें। ये लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने इलाबोरेट करके लिखा है नहीं लिखा। हम्म इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, लिविंग नो लूज एंड्स। हम्म हम कोई लूज एंड नहीं छोड़े उसमें, अपनी बात पूरी कहें। जैसे अभी रोजगार की हमारी मीटिंग का चल रहा था, तो मैं देखा था परफेक्ट कम्युनिकेशन था, इतने बजे जूम पर होगी, ये लोग होंगे, ये उसका लिंक है, कंप्लीट कम्युनिकेशन था। हम्म तो वो क्या हो गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं था किसी को पूछने का, क्योंकि डेट है, टाइम है, प्लेटफॉर्म है, लिंक प्रोवाइडेड है, एवरीथिंग इज कंप्लीट, नो लूज एंड अवेलेबल। आपकी बात से बात निकल के जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये इस हम लेवल पे तब पहुंच पाते हैं, नो लूज एंड्स अवेलेबल, जब हम उनको बार बार रिविजिट करते हैं। मतलब अगर यही हमारा जो पोस्टर है उसको हम बार बार देखते हैं, बार बार, जैसे अभिषेक है, बार बार मीटिंग में शेयर किया, सब लोगों ने अपना इनपुट दिए, तो जितना रिविजिट करते हैं शायद उतना लूज एंड्स को चेक करने का एक वो मिल जाता है। अब रिटर्न की बात होगी तो वर्बल पे, मतलब जो अब जुबान से बातचीत होती है, तो जरा उस पे भी प्रकाश डालिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे महत्वपूर्ण है। वर्बल में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो जो हमारा इम्पैक्ट होता है थ्रू अवर एक्सप्रेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी जो स्पोकन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, रिटर्न भी वर्बल में ही आता है। स्पोकन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा क्या होता है, हमारा जो टोन है, चूजिंग द वर्ड्स है, और पॉज जो हम देते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है, इनोटेशन बोलते हैं उसको, यानी टोन को हाई और लो पिच, जो पिच होती है स्पोकन पिच, लो हाई करके उससे ना उसका मतलब बदल जाता है, फिर उसे इनोटेशन बोलते हैं। तो वो उसका फर्क होता है स्पोकन में। दूसरा फायदा ये होता है कि यस, इट कैन बी रिकॉर्डेड। जैसे हमारी ये वर्कशॉप रिकॉर्ड हो रही है, तो ये हमारे पास रिटेन होगी लंबे टाइम के लिए। पहले ऐसे प्रोविजन नहीं होते थे, दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, टाइम सेविंग बहुत होती है। रिटर्न कब पड़ेगा, कब दिखेगा, हमें मीडियम चाहिए, स्पोकन में वर्बली बातचीत कर ली फोन पे या फेस टू फेस, तो वो हमारा टाइम सेव हो गया। और एक और भी मेरे जहन में बात आ रही है कि बहुत से लोगों के लिए रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा एक चैलेंज भी होता है। मतलब जी, बहुत लिमिटेड लोग शायद रिटन कम्युनिकेशन को कंफर्टेबली कर पाते हैं। प्रेफरेबली लोग वो वर्बल कम्युनिकेशन
मतलब कंफर्टेबल होते हैं, रिटन अवॉइड ही करते हैं, मतलब जी बाय एंड लार्ज लोग रिटन को अवॉइड करते हैं। और अब ये जो बात है कि थोड़ा सा पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्यों जी जरूरत है, क्या पॉजिटिव ही होनी चाहिए कम्युनिकेशन, ये भी एक बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन माइंड्स की हम बात करें तो जो ह्यूमन माइंड पे रिसर्च हो रही है थ्रू साइकोलॉजिस्ट, वो रिसर्च ये कहती है कि कोई भी इंसान ना नहीं सुनना चाहता आज की डेट में। सवाल ये है कि जो भी बात कर रहा है, सपोज किसी ने कोई काम बताया हमें, और वो ये एक्सपेक्ट करके आता है कि मैंने कहा कि मेरा काम तो होगा ही होगा, वो पहले से प्री डिसाइडेड या टेक इट ग्रांटेड लेके आता है, तो उसको नो सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काम वैसे उसके हिसाब से चले या हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट ही होते हैं। तो अभी जैसे मेरे प्रोग्राम चल रहे थे बैंक्स मैनेजर्स के, तो क्या हो रहा था, सर वो ना मुझे घर जाना है, 3 दिन की छुट्टी जाना है मुझे, आप है ना ये हमारा जो टेस्ट है ये पोस्टपोन कर दो। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोटोकॉल है, टेस्ट पोस्टपोन नहीं होते 3 बच्चों के पीछे, वहां तो 300 बच्चे बैठने, पूरा बैच बैठेगा। वो कहता है ये पोस्टपोन कर दो, ये मेरा दोबारा ले लो। दोबारा पॉसिबल नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब ये उसको समझ नहीं आती, वो कहता है मुझे छुट्टी जाना है, आप पोस्टपोन कर दो। तो वो ना सुनना नहीं चाहता। तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है आप छुट्टी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेस्ट की रिकवरी अपने फाइनल में कर लेना, सेकंड टेस्ट में कर लेना, क्योंकि दोबारा तो होता नहीं है टेस्ट में, ये यूनिवर्सिटी का नॉर्म ऐसा है। तो वो रूल बता दिया क्या है, अपने को अपने कैसे बचाया, बाईपास किया कि रिकवर कर लेना, वो जो तुम्हारे मार्क्स लूज होंगे इस टेस्ट के, अगले 2 टेस्ट और भी तो हैं, उसमें रिकवर कर लेना। इसके पीछे ही साइंस क्या है, 3 चीजें काम करती है वर्ल्ड में ऑन ह्यूमन माइंड्स, होप्स, एश्योरेंसेस एंड पॉसिबिलिटीज। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो होता है, जस्ट क्रिएट होप, एश्योरेंस एंड पॉसिबिलिटी, वो कम्युनिकेशन सारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, नो कहते ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक तरीका ये है, ठीक है आप छुट्टी जा सकते हो बट यू विल लूज मार्क्स। समझ में आ गई कि मार्क्स क्यों लूज करेगा, दोबारा तो होंगे नहीं, टेस्ट तो होगा, हमने नो कहा ही नहीं है, यू विल लूज मार्क्स। मतलब ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है सारा। हाँ, मैं वही, मेरा जो सवाल है जी कि क्या, मतलब नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव की बात नहीं, मतलब क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते कम्युनिकेशन में, मतलब पॉजिटिव ऐसा नहीं है, बोल लार सकते हैं। लपेट, मतलब मेरा कहना है कि जब आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बात करते हो तो एक लार लपेट है, उसमें आप चीजों को फॉर्मल वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल मैं ठीक क्या, कर रहे हैं। हाँ तो क्या ऐसा, मतलब ये क्या बात हुई कि मुझे बात करनी है तो मुझे मतलब बैसाखियों की जरूरत है, शब्दों बिल्कुल की जरूरत है। चलिए अब एग्जांपल देता हूं मैं आपका, जैसे हमारे विनोद जी का ऑफिस है, उनके पास काफी सारे लोग हैं, अच्छे लेवल के लोग हैं। 4 लोग कहते हैं जी सर बहुत दिन से पार्टी नहीं हुई हमारी, हम थक गए काम कर रहे थे, एक दिन पार्टी कर दो। अब विनोद जी सोचे पड़ गए कि यार पार्टी कर दे, पहले 2 घंटे खराब होंगे, पार्टी करने का टाइम ऑफिस आवर भी होगी या बाद में भी होगी, तो स्टे बैक होगा, दैट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा इट इज ए कॉस्ट। अब 2 चीजें कंसिडर करें और हमें पार्टी नहीं करनी है, तो नो कैसे करेंगे, सीधा नो कह दिया तो रिपल्शन मिलेगा, उनको नाराजगी होगी, अच्छा नहीं लगेगा ह्यूमन माइंड से। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं ईयर एंड पे कर लेते हैं ना, अभी तो रिटर्न जानी, जुलाई खत्म होने से बाद करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी और होप दे दी हमने, कमिटमेंट तो नहीं किया हमने, लेकिन नो भी नहीं कहा हमने। तो मतलब नो कहना ही नहीं है क्या, मतलब यही तो कह रही हूँ, जब भी ऐसा नहीं कहना है, ये देखा जाता है कि सामने वाला कौन है। कौन है। सपोज क्लास में स्टूडेंट है, ठीक ठीक कैटेगरी ऑफ ऑडियंस कौन है, ठीक है, क्लास ठीक में स्टूडेंट है, टीचर नो कह सकता है, ठीक 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 ठीक, कैटेगरी ऑफ ऑडियंस, हाँ ठीक है। या लेकिन ऑफिस में जहां लगता है कि बंदे नाराज होंगे या रिएक्शन आएगा, तो वो हाँ हमें प्रोफेशनल सोचना पड़ता है। वी आर सोशल बीइंग्स और ह्यूमन माइंड्स यही है, ठीक नो बात। वन वांट्स टू लिसन नो, नो, ये फंडामेंटल है। the essence which you distinguished, जी it all depends कि हमारे ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब जहाँ से अथॉरिटी है वहां ठीक है, हाँ, अथॉरिटी कैन यूज नो, नो इश्यूज। oh yes, और जहाँ that's good, अथॉरिटी उतनी नहीं है, नहीं है तो तो होप्स एंड एश्योरेंस चलते हैं फिर। then there is no scope for no, when there जी is no authority, no बिल्कुल ठीक, scope for no। वो कैटेगरी सेगमेंटेशन। हाँ, अब जो एक आखिरी सवाल है, और अब मैं आखिरी सवाल करने से पहले फिर से सभी पार्टिसिपेंट्स को फिर से जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने जी सवाल तैयार रखें।
आपको बातचीत में कभी दिक्कत, ऐसी तो बात है नहीं कि किसी को बातचीत में दिक्कत नहीं आती, सबके अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं कम्युनिकेशन के। आपने इंटरव्यू देना है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, अपनी मम्मी से बात करनी है, आपको आपने कहीं क्लास लेनी है, एज ए टीचर आपको क्लास लेनी है, तो बहुत बहुत चीजें, आप वकील हैं तो आपको कोर्ट में पेश करना है, अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है। तो अपने सवाल लिख के कृपया करके, हमारे साथ इतने एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन मिस्टर सुभाष मलिक अवेलेबल है, तो अपने लिखित में सवाल लिखिए और सवाल पूछिए। बस ये मेरा आखिरी सवाल है सुभाष जी, उसके बाद ये ठीक है, हाउस ओपन होगा। आनंद वो जी बच्चों को पूछने दीजिए। हाँ, ये आखिरी सवाल मेरा है, उसके बाद ये हमारा हाउस सभी बच्चे पूछेंगे। तो मेरा अब लास्ट क्वेश्चन जो था कि इतना सोशल मीडिया यूट्यूब का जमाना है, मतलब आज की तो एज जब लिखी जाएगी तो कम्युनिकेशन की एज होगी। कोई ठीक है भी सर, पूछ रहे हैं तो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, और दूसरा अभी वो कौन सा क्या मैं लेट मी कंक्लूड एंड देन ही मे आस्क। और जिसको क्वेश्चन पूछना हो मेरे ख्याल हैंड रेस करके और वर्बल पूछे, मतलब बोल के पूछे तो बेहतर रहेगा, सबको समझ में आएगा। तो जो वो जमाना आज की एज को कहा जाएगा कि यूट्यूब कम्युनिकेशन का ही जमाना हो गया, मतलब इतने इन्फ्लुएंसर बन गए यूट्यूब पे लोग, बिल्कुल, इतने दैट इज ऑल इन्फ्लुएंसर है, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल है, चाहे वो दैट इज ऑल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो करेक्ट। कुकिंग क्लासेस है, मतलब इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। तो क्या खासियत है, मतलब क्या क्या है इन सब में कि वो इतने प्रभावशाली हो जाते हैं, इतनी फॉलोइंग है उनकी, मिलियंस बिलियंस में फॉलोइंग है, क्या क्या ऐसा अलग है उनमें? साइंटिफिक रीजन है, हाँ। वो वही बात करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। अच्छा। हमें क्या अच्छा लगता है? एंटरटेनमेंट, हम्म। अगेन होप्स एंड एश्योरेंसेस, हम्म। और पॉजिटिविटी, हम्म। वही बात ओके। करते हैं अच्छा। जो हमें अच्छा लगता है। इसलिए हम लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और रिपीटेडली उनको फॉलो करते हैं। तो पर वो इस पे रिसर्च तो करते हैं कि हमें अच्छा क्या लगता है, ये भी तो बात है। वो दूसरे के माइंड जनरल में जाके, जनरल चीजें हैं, जनरिक हैं, जनरिक। नहीं किसी के माइंड में जाके ये भी तो पता लगाना कि इसको नहीं चाहता नहीं, क्या है। स्टैंडर्ड्स, वो सोसाइटी स्टैंडर्ड्स हैं। ओके। देखिए, जब हम किसी की ग्रोथ की बात करेंगे अच्छी लगेगी उसे। हम्म। ठीक। हम किसी को इंपॉर्टेंस देंगे उसको अच्छा लगेगा। हम हम्म। किसी को अप्रिशिएट करेंगे वो अच्छा लगेगा। हम्म। अभी 41 आपने बताया था लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम्म। तो रियली 42 आई है, एम थैंकफुल टू देम। अभी 42 है। 42 हो गया, मतलब आई एम थैंकफुल टू देम एंड रियली, वो कितना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को सुना है और यहाँ बैठे हैं। हाँ। तो मैं अप्रिशिएट ही तो कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगेगा। हाँ। तो चलो अभिषेक, तुमसे स्टार्ट करते हैं सवाल, फिर विक्की, फरत। सो अब हम हाउस को ओपन कर रहे हैं। अभी तो ये जो सेशन प्रोग्राम चल रहा था वो एक पॉडकास्ट के तरीके से चल रहा था, जिसमें मैम क्वेश्चन पूछ रही थी और सर का आंसर दे रहे थे, और आप सभी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं पहले अपना क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर, एज अ स्पीकर और एज अ लॉयर और टीचरों का भी होता है कि जो उनकी ऑडियंस है, यानी कि यहाँ तो वो बात पहुंचाई जा रही है, चाहे वो जज हो या फिर कहीं स्पीकर हो, आपके सामने पार्टिसिपेंट से स्टूडेंट्स हैं, उनका अटेंशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उस अटेंशन को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा सर। टेंशन को ऑडियंस की बनाने के लिए उन्हीं के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए हमें, और उनका इंटरेस्ट पहले जान लेना ज्यादा बेटर रहता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि वाई, वो ना व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये फार्मूला है। मेरे लिए क्या है तो मैं अटेंड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे क्या है, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, तो ओनली बेनिफिट्स वी टॉक। फायदा मिलेगा तो मैं अटेंड करूंगा, नहीं मिलेगा नहीं करूंगा। थैंक यू सर। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार जो कम्युनिकेट करना किसी के साथ काफी चैलेंजिंग होता है या डिफिकल्ट होता है। मान लो पीछे कुछ हुआ हो, एक दिन पहले लड़ाई हो गई हो किसी से, और आपको किसी बात करना ही करना है। वो कोई भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। सो वहां पे हम किस तरह से बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं? इस तरह से, बैकग्राउंड क्या था? सर, हम जो कन्वर्सेशन है वो कई बार डिफिकल्ट होता है, या डिफिकल्ट कन्वर्ट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं, होता है। हाँ। कन्वर्सेशन डिफिकल्ट नहीं होता, लोग डिफिकल्ट होते हैं। जी सर, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, मेरा लोग क्वेश्चन टफ ये होते था। हैं ना, जो सुनना नहीं चाहते, इंस्टेंट जवाब चाहिए, या उनकी टोन ठीक नहीं है, या अथॉरिटी है, तो वो यस सर। डिफिकल्ट लोग होते हैं। तो बेस्ट जो इसका फार्मूला होता है कि पहले लिसनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, पूरी बात सुन लेनी चाहिए, और ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस सेकंड है।
सर लिसनिंग से ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा अपने, कि उस हाँ, एक्टिव लिसनिंग को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग की बात चलती है होती है एक्टिव लिसनिंग में यू शुड बी गेट इन्वॉल्व, इंडल्ज होना पड़ता है उसमें। इन्वॉल्व और इंडल्ज में फर्क है थोड़ा सा। इंडल्ज का मतलब 100% है। इंडल्ज होने का मतलब है कि आपका दिखना चाहिए आप सुन रहे हैं, यानी टेकिंग नोट्स, नोडिंग द हेड्स, और बीच में ठीक है जी, आगे चले सर, नोटेड सर, इस तरह से। तो वो आप इंडल्ज हो गए लिसनिंग में, ये एक्टिव लिसनिंग होती है। और जहां डाउट लगे आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सर मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप आपसे भी पार्टिसिपेंट से किसी क्वेश्चन है तो आप वही पूछ सकते हैं। और किसी का थैंक यू क्वेश्चन सो है तो? मच। हाँ सर, सर अभी रिसेंटली अभी सर मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी एट द टाइम ऑफ ऑडिट। सर हमारा ऑडिट का काम होता है, हाँ तो जी, हम हर जगह ऑडिट करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे हमसे मतलब बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं जिनको हमें चीज़ों को बताना होता है कि आपको इस चीज़ को इस रूल्स और रेगुलेशन के साथ करना है। तो दूसरा ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट मेरा स्कूलों में काम था। तो स्कूलों में अच्छा, जो मेरी बात होती थी सीधा एचओएस से होती थी, हेड ऑफ स्कूल मतलब प्रिंसिपल से होती थी। ठीक है, तो दिल्ली के 26 स्कूल सिलेक्टेड हुए थे सर, उसमें से मैंने सब कार स्कूलों का करा, बट एक दो प्रिंसिपल थोड़े से होते हैं सर, थोड़े से कड़क, जिनकी थोड़ी ठीक ईगो है, जल्दी हट हो जाती है। ठीक तो बात सर है। ऐसे में जब मैं एक स्कूल में गया तो वहां पे जो थोड़े से वो थे, क्या बोलते, जो प्रिंसिपल थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो उनको थोड़ी बात हर्ट होने लगी कि भाई साहब आप ठीक, इतने छोटे हो और आप हमें सिखा रहे हो। बेशक वो चीज वो गलत कर रहे हैं, उनको वहां पे मैंने बता भी समझ, दिया कि ये आप चीज आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक बात, आपको ये चीजें ठीक करनी है। बट ठीक वो बात चीज है। को समझते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हम ठीक है आप गलत हो। आप उनको सर्कुलर भी पढ़ा दोगे तो भी वो बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ। और फिर आप उनको थोड़ा समझाओगे कि सर रूल के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, आप ऐसे गलत कर रहे हो, फिर वो ठीक सर बात है। उनकी ईगो हर्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर वो कन्वर्सेशन थोड़ी सी हीट हो जाती है, मतलब कि आप उस चीज को थोड़ा सा सोचते हो कि आप उसको कैसे स्टेबिलिटी में लेके आओ कि आपका काम भी निकल जाए, उनको बुरा भी ठीक ना है, लगे। हाँ, वो ठीक है, थोड़ा नेगेटिव में लेके जाते हैं कि आप छोटे हो और आप हमें सिखा रहे हो, मतलब काम कराना बहुत मुश्किल होता है अपने से बड़े करेक्ट, से ज्यादा सीनियर लोगों से। तो ये सर इस चीज को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगा था मुझे एक जगह, वैसे तो सब बढ़िया होता है सर, मैं इसलिए मैं बहुत बिल्कुल, हेल्पफुल हूँ कि मेरे को हाँ आज का सेशन मिला, मेरा बहुत पहले ठीक का है। क्वेश्चन था ये। तो दो चीज है विक्की इसमें, जो ऑडिट की बात करी ना, एक तो ये कंप्लायंस इशू है हाँ कि जी सर। एज पर रूल नहीं हुआ, कंप्लायंस है ये, लीगल भी हो गया साथ में। हम्म। वर्बल बात करनी नहीं चाहिए, रिटर्न करनी चाहिए, नहीं सर, सिंपल है। रिटर्न भी करेंगे, हाँ रिटर्न भी रिटर्न करेंगे नहीं सर करनी वो। चाहिए, उस हम्म। बुरा वाली बात ही नहीं है ना, कोई ऑन ऑन रिकॉर्ड हो गया ना। और हम्म। उसमें जो सीसी होना चाहिए वो सबको लपेटना चाहिए। वो हाँ सर वो क्योंकि तो होता उसके ही बाद है आंसर थोड़ी। नहीं ना, फिर वो छुपा नहीं सकता। होता क्या है कि अपनी गलती को डिफेंसिव होते हैं असल में इस तरह के लोग। हम्म। तो वो एक बहाना है कि तुम छोटी उम्र के हो, अरे भाई एक्सपर्टीज तो मेरी बहुत है ना, जो तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है वो। तुम अपना हम्म। ऑपरेशन चलाते हो, हम ऑडिट करते हैं, हम कंप्लायंस चलाते हैं, तुम ऑपरेशन चलाते हो। डिपार्टमेंट ही डिफरेंट है दोनों। हाँ, इसलिए उनकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेड होना ज्यादा चाहिए, हाँ। रिटर्न होना चाहिए, बेटर रहता है, उसमें इशू नहीं आता है वैसे कोई। नहीं सर, ये जब चीज हुई थी तो हमने यही करा था, हमने सर्कुलर पढ़ा दिया सीधा। वर्बली हमने कहा बात सर नहीं करनी चाहिए, सर्कुलर मैं अभी देखिए, बता रहा हूँ, उसमें हाँ ना हमने हाँ वो कन्फ्लिक्ट ज्यादा सर्कुलर होता है। दिखा दिया। हाँ, तो उससे वो चीजें क्लियर हो जाती है, बट तब भी सर उनका ना माइंड थोड़ा हीट होता है कि नहीं सर्कुलर है तो क्या हो गया, बट आप ऐसे है ये है वो, तो टोन थोड़ी सी एक हो काम जाती है कि टोन चेंज हो एक जाती काम है। करना, मैंने एक हम्म। किताब भेजी है ज्योतिका जी को, डेल कार्नेज की है, वो पढ़ लेना, पीडीएफ फाइल है, अच्छी किताब है, वर्ल्ड की बेस्ट बुक है कम्युनिकेशन पे, वो अच्छा पढ़ लेना। बहुत अच्छी किताब है, बहुत समझ में आ जाएगा हाउ टू कम्युनिकेट इन कन्वर्सेशन, इस तरह की कंप्लायंस में क्या करना चाहिए, तो सर, उसे एक दूसरा गाइडेंस मिल जाएगी। क्वेश्चन। हाँ सर, एक मेरा एक और क्वेश्चन था कि जब भी हमसे कोई सीनियर या कोई हमारा कोई बड़ा या फिर हमारे घरों में या कहीं भी कोई कुछ हाँ, बोलता है तो हम उसको बहुत फास्ट डिसीजन देते हैं, मतलब कि हम उसको मना तो कभी करते ही नहीं, मतलब वो चाहे हमें 10 काम दे दे, हम ठीक है, कितने भी बिजी हो हम उसको मना नहीं करते कभी भी, हाँ हम कर देंगे, हाँ हम कर देंगे। तो कहीं ठीक ना है, कहीं बिजी शेड्यूल के बाद हम वो काम नहीं कर पाते एट द सेम टाइम। तो वो ठीक है, चीजें उनको बहुत खलती है कि यार ये बंदा हाँ बोल के भी नहीं कर रहा और अपने आप को बहुत बिजी दिखा रहा है, ये बहुत अपने आप को बिजी समझ रहा है, एक तरीके से समझ, बहुत अपने को अंबानी तबानी समझ रहा है। इस तरीके की सोच होती है लोगों की। तो उस टाइम पे उनको कैसे समझाना है कि मेरे पास आपसे भी ज्यादा थोड़ा बिजी टाइम है और मेरे को चीजें कुछ और भी देखनी है, और हम उनको मना भी नहीं कर सकते। मना कर देंगे तो उनकी गोली को हट हो जाएगी कि बड़ा हो गया, मना कर रहा है चीजों को लेके। तो सर इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है? ये एजम्पशन है ना कि वह सोचेगा। तो होता क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको नो कहना भी आना चाहिए। वो कैलकुलेशन है कि आप कितना कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। जहां तक कर पाएंगे एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद आई विल ट्राई।
अगेन ट्राई क्या है? होप ही तो है। और ट्राई का सर कभी मतलब क्या होता है? ट्राई का जो फंडामेंटल मीनिंग है ना, वो तो व्हेन यू एक्सेप्ट ट्राई, से ट्राई यू एक्सेप्ट फेलियर फर्स्ट। ट्राई जी का सर। मतलब ये कोशिश करूंगा, हो नहीं पाएगा, तो एक्सेप्ट फेलियर फर्स्ट है ना। दूसरे को भी समझ में आती है बात, क्योंकि कैलकुलेशन है, टाइम भी मैटर करता है, प्रायोरिटी भी मैटर करती है। तो यस मैन भी नहीं बन सकते ना, वो हमारी नेगेटिव ट्रेट है यस मैन बनना। जी सर। हाँ बिल्कुल, आप फ्रंट वो नहीं करनी चाहिए, वो प्रोफेशनली अलग बात है, लेकिन होप एंड एश्योरेंस पॉसिबिलिटीज, उसको माइंड में रखते हुए उसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं या लिंगर ऑन कर सकते हैं कि आज नहीं हो पाएगा जी, इसको नेक्स्ट वीक देखते हैं। तो आपने ना भी नहीं करी, और हमारा काम भी हो जाएगा, मतलब काम भी हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो पर्पस जाएगा, सॉल्व वो हो गया। नाराज भी नहीं होगा बंदा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। आदि सर संदीप और चावला कभी सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी। सुभाष जी, मैंने आपके कम्युनिकेशन के सेशन बहुत अटेंड किए। हर बार अच्छा, अटेंड करता हूँ तो कुछ नयापन दिखता है। थैंक यू तो सो मच। कॉम्प्लीमेंट वंस अगेन। सर, थैंक्स, मैं थैंक्स अ लॉट इसमें ऐड करना चाह रहा था, जी। जो विकी जी बात कर रहे थे, विद योर हाँ जी, परमिशन। श्योर श्योर। विकी, एक सबसे बड़ी बात थी जो आपका पहला था, जब आप कह रहे थे कि हमारा एज कम है तो ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रिंसिपल सीनियर प्रिंसिपल। तो है कि अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, जो सर ने भी, तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली, चाहे वहां एज नहीं मैटर करती, वहां आपकी एक्सपर्टीज मैटर करती है। मेरे हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, बट हाउ यू पुट द थिंग्स। सर ने सबसे पहले ही बोला था, सुभाष सर ने, कि आप किसी बात को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो बहुत मैटर करेगा। और अगर कोई चीज गलत है तो आपको उनके उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको शेयर करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम तो आपको हमेशा आएगी कि आप जाएंगे तो एज आपकी कम है, बट आप एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं और आप जा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर कैलिबर। तो शायद आपको उस चीज को ओवरकम करने के लिए अपना ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक्सपर्ट हूं, मेरी नॉलेज उनसे ज्यादा है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा सर, मैं आपने आंसर दिया, जी सर। भी मैं दोबारा कहूंगा कि कई बार नो कहना भी आना चाहिए। ये भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लर्न टू से सर और भैया, जरूरी है, प्रोफेशन बहुत जरूरी है। आवाज ब्रोकन हो रही है। सर आई थिंक हेलो नेटवर्क सर, आपका थोड़ा कमजोर है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं सर, मैं ये कह इसलिए। रहा था कि नो। ओके, 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 आई स्टॉप हियर। यस प्रीति, यू वांट टू डू इसलिए समथिंग? आप कुछ पूछना चाहते थे? हाँ हाँ, जी वो मैम, एक्चुअली में क्या सर यही बोल रही थी कि नेटवर्क इशू थे। अब आ रही है। अच्छा ओके ओके। अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था कि जब वो मेरी वो विक्की इंसिडेंट हुआ था। विक्की हाँ जी, विक्की हाँ जी, प्लीज हाँ जी, गिव हाँ जी चांस मैम। टू अदर्स। ओके मैम। यस ममता, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था। फर्स्ट, कि हाँ जब जी भी हम बताओ। कम्युनिकेट, यस सर, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो अच्छा, जिसके कारण हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या उस सिचुएशन से मतलब क्या इमोशनल हो गए तो हम बचते कि अब बस बोलना ना पड़े करके। तो जो हम अपना कम्युनिकेट करते करते इतना इमोशनल हो जाते हैं, उस सिचुएशन से कैसे हैंडल किया जा सकता है? दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो इमोशनल हम होते क्यों हैं, उसका जो मेन रीजन है वो है लो कॉन्फिडेंस। तीसरा लो करेज, करेज नहीं होती हमारे अंदर हाँ अपनी जी बात सर। को स्ट्रांगली कहने की। तो दो चीजों में काम करना चाहिए हमें, एक तो करेज होनी चाहिए, अपनी बात पूरी कहें, और धीरे धीरे कहें लेकिन कंप्लीट कहें, तो करेज बनेगी। दूसरा कॉन्फिडेंस से कहें। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब माइंड में क्लैरिटी होती है, ओके। तो वो इमोशनली वीक नहीं बनेंगे फिर। बट सर काफी तैयारी भी करते हैं, बट फिर मतलब कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं, तो करते करना पड़ेगा इसके लिए प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से आते हैं, कॉन्फिडेंस हाई चाहिए होता है, तो प्रैक्टिस से आता है ये।
जी। एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस अपने ही जब पढ़ाई करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे, उनके साथ करें, टीचर से बातचीत करें, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा अपने आप ही। और घर में भी करें ऐसे ही, कॉन्फिडेंस से बात करो, करेज से बात करो, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। कंफ्यूजन होगा तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए वो इमोशनल जो हो जाते हैं, उसका मतलब यही है कि हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं समझ कुछ में आ ऐड गया ना करना कुछ? चाहूंगा इसमें, आई थिंक ममता के क्वेश्चन में। सो एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे बात बता लीजिए, जो आपने क्लैरिटी की गई काफी अच्छी कही। और वो क्लैरिटी आती है जब आपका मटेरियल रेडी होता है, या आप पूरा आपका होल्ड होता है टॉपिक के ऊपर। और अगर आपका ये दो चीज रेडी है, आपका होल्ड है, पूरा अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है चीज को, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल है। ठीक, वो भी कर सकता है। सो लक्ष्मी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब मैं कम्युनिकेशन करती हूँ कोई भी एक टॉपिक हो, इजीली मैं कर लेती हूँ, लेकिन चाहे फैमिली मेंबर हो या जिससे मैं इजीली जानती हूँ, लेकिन कोई अजनबी या कोई स्ट्रेंज पर्सन होता है, उसके सामने मैं अपनी बातों को रख नहीं पाती, वही बातें जो मैं इजीली किसी अनदर पर्सन के सामने कर सकती हूँ, जो जिसे मैं जानती हूँ। जैसे एज अ जॉब फेयर में जब मैं गई थी, सक्षम भारती में लगा था, मुझे एक कंपनी में जैसे मैं वर्क करती हूँ, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का बैच मिल रखा है, और जब उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि कैसे मिला, उसी बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मैं बहुत घबरा गई, पता नहीं क्यों। दो चीजें होती है राधा इसमें, एक तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन डिफरेंट है, ये पर लक्ष्मी ये है चीज नॉर्मल सुभाष वे जी। में भी होता है। सुभाष जी, शी इज लक्ष्मी। द अच्छा क्वेश्चन लक्ष्मी, फ्रॉम लक्ष्मी, यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ से, राधा का पहले दिख रहा। एनीवे, तो लक्ष्मी ऐसा होता है कि एक तो ये सबसे समस्या हमारी जो होती है ना, ये स्पेशल सिचुएशन है, उस टाइम बोलना था अवार्ड विनिंग में, बोल सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है, एज्यूम कर लेते हैं चीजों को। होता क्या कि हमारे अंदर एक कम्प्लेक्स आता है, जो मेरे सामने वाले हैं वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, ये फीलिंग आती है हमारे अंदर। तो अभी जो पहले ज्योतिका जी ने बात करी थी, वो यही बात हो रही थी, पहले फीलिंग आती है, फिर थॉट्स बनते हैं, फिर वर्ड्स बनते हैं। तो जब फीलिंग ही नेगेटिव आ गई पहले से, तो वर्ड्स बनेंगे नहीं ना, वर्ड्स नहीं बनेंगे तो हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, इतनी सी बात है। तो वो क्लैरिटी रखनी पड़ती है माइंड में, कि जो कुछ हमें पता है, जो भी रीजन रहा आपके विकल्प बनने का, उतना ही तो बोलना था, कि मैंने ये किया इसलिए मुझे भी ना अवार्ड मिला, मुझे आपने अच्छा काम तो किया ही है कोई, तभी तो अवार्ड मिला है। तो वही तो बताना था, एक ही लाइन में बताना था बस, जो भी रीजन था, जस्टिफिकेशन था, जिस वजह से आपको अवार्ड मिल पाया। वो चार रीजन नहीं होते, रीजन एक ही होता है। तो कॉन्फिडेंस से कहना था, दूसरा एज्यूम नहीं करना, अपने मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि मेरे वाला जो मेरे से सामने वाला है ज्यादा सुपीरियर है, मुझे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं ही सुपीरियर हूँ। तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फीलिंग नहीं आएगी तो वर्ड स्ट्रांग हो जाएंगे अपने आप। हाँ सर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक डर लगा रहता है कि मैं अपनी बात को अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अपनी बिल्कुल, बात को अच्छे से रख ही नहीं एजम्पशन है पाती ये, हूँ। अब प्रैक्टिस करो इसकी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अलग से मेरे से बातचीत कर लेना, इस पे ऑडियो पे फोन कॉल करके, या कभी भी मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो मैं समझा दूंगा ये स्टेज फियर निकालते कैसे हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। राधा, आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक आप शायद जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है आपका। Yes, sir. I have a question. यस, यू मे आस्क राधा। Hello. Okay. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वो या फिर लैंग्वेज हम देखते हैं कि इंग्लिश में कर रहे हैं या फिर हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन एक जो बात जो मैं कहना चाहूंगी, जब हम ऑफिस में होते हैं तो अपने आप को पता नहीं, मतलब या फिर डिग्री ले लो या फिर कुछ ले लो, ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं अपने आप को, मतलब हम एक्सपीरियंस को ज्यादा मायने या महत्व नहीं देते। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि हमें अपने आप को और कॉन्फिडेंस समझना चाहिए या फिर नहीं सीनियर्स के सामने, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड में काम करते हैं, इसलिए हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कैन यू एक्सप्लेन इट प्लीज? दो इसमें चीजें हैं, कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं? हाँ सीनियर से बातचीत करते हैं ना, तो देखो सीनियर है तो ये हमें पता है इस बात का कि वो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, नो डाउट। तो जो अपनी बात कहनी है, जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी अपने पास, उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो उतनी बात कह देनी चाहिए, क्योंकि वो आप कॉन्फिडेंस है आपको, और वो क्लैरिटी है आपको।
तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। एक तो ये बात। दूसरा एक्सपर्ट क्या होता है कि हम अपने आप को सामने इन्फीरियर मानना शुरू कर लेते हैं, फीलिंग वही आती है फिर, क्या ये मेरे से सीनियर है, मैं बात कैसे करूं। तो ये फीलिंग ही तो है, इस फीलिंग को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में सीनियर जूनियर नहीं होते, कलीग्स होते हैं। उसको ज्यादा एक्सपर्टीज है, ज्यादा टाइम हो गया है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए सीनियर कहलाता है वो। काम तो बराबर ही करते हैं, तो सारे कलीग्स ही, कोवर्कर ही तो हैं सारे हम। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना अपना जॉब प्रोफाइल है, लेकिन है तो कोवर्कर ही हम, कलीग्स ही तो है। तो ये फीलिंग होगी तो कभी भी नहीं आएगी इस तरह की प्रॉब्लम। समझ में आ गया राधा? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे हम कभी कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, तो उस टाइम तो याद नहीं आता मतलब अगर किसी ने कुछ पूछा है, कोई क्वेश्चन किया है, उस टाइम तो समझ नहीं आएगा क्या बोला है, लेकिन बाद में थॉट्स चलते हैं कि अच्छा ये बोल देते तो ज्यादा अच्छा होता, ये बोल देते तो ज्यादा सही रहता। तो मतलब ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे इम्प्रूव करें कि हमें उस टाइम पे जो हम सोच, बाद में हमें थॉट्स आए हैं कि ये बोलना चाहिए था, वो उस टाइम पे कैसे बोले? दो चीजें हैं इसमें भी संजू। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी बोले सोच समझ के बोले, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है कि हम ना जंप करते हैं आंसर देने में, अंडरस्टैंड नहीं करते चीजों को। यदि अंडरस्टैंडिंग से बोलेंगे तो इस प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लैरिटी चाहिए और प्रिपरेशन चाहिए थोड़ी सी, तो बाद में नहीं सोचेंगे। क्योंकि हम पहले बोल दिया तो इसका मतलब हमने हरिड में बोला, जल्दी ही बोला है, बिना सोचे समझे बोला है, या कम सोच के बोला है, उसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जितना क्लैरिटी हम अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे, उतना हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। फंडामेंटल है ये, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। तो जब भी थैंक यू बोलें सर। सोच समझ के बोलेंगे, तो गलती कभी भी नहीं होगी, और कभी अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे अपने आप को। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज फरहत। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी हमें बहुत अच्छे से आती है, हम बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक बट है। होता क्या है, जब जैसे हम स्टेट पे आते हैं और हमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी होती है, सर उस वक्त बहुत ज्यादा फियर और एक डर आ जाता है, और आता है आता है बोलना, मगर फिर भी वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, बहुत फंबल होने लगता है और हेजिटेशन आ जाती है। सर उस सिचुएशन में क्या करें? जी, घबराहट होने दो लगती है चीजें, बहुत ज्यादा। दो चीजें हैं। लैंग्वेज है ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। होता क्या है, हिंदी तो हमारी वो बोलते हैं ना मातृभाषा है, जी। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश को भी मातृभाषा बनाया जा सकता है। तो कुछ भी नहीं होता, ओके। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है इस बात के लिए। लैंग्वेज पे कंट्रोल चाहिए, वो होता है प्रैक्टिस से। यदि इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो स्पोकन इंग्लिश सिखाती हैं। यानी इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, हम्म। सुननी आती है, बोलने में समस्या है। ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पोकन की स्पीकिंग की प्रॉब्लम है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ओके सर। चार चीजें है ना, एक चीज नहीं है हमारे पास, बोलने की प्रैक्टिस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब प्रैक्टिस करेंगे, गलती भी नहीं होगी। लैंग्वेज तो आती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है बोलने की, इतनी सी। वो आप प्रैक्टिस करो, ये 1-2 महीने में ठीक हो जाती है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। हम दो थैंक क्वेश्चन यू और लेंगे सर। लास्ट के। पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन है। सर का क्वेश्चन आया, प्रदीप मल्होत्रा सर का, जी, हाउ कि टू हाउ टू कम्युनिकेट विद कम्युनिकेट विद पीपल हु आर पीपल हु आर नॉट नॉट विलिंग विलिंग टू टू। कम्युनिकेट। जो विलिंग ही नहीं है तो अपनी बात, यदि कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ठीक है, पर मैटर ऑफ विल तो है, जब नहीं बोलना है जबरदस्ती कैसे बोलेंगे हम? वो भी तो हमारा एक सोशल एटिकेट है ना। भाई जैसे अभी यहाँ इतने 42 लोग हैं, और मैं पूछ रहा हूँ सब कुछ समझ में आ गया, 4 लोग नहीं बोलते, तो मैं 1-to-1 तो नहीं पूछूंगा ना भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब वो नहीं आंसर देना चाहते, एट विल है ना। वो उनकी गलती भी हो सकती है, या केयरलेसनेस भी हो सकती है, या इंटरेस्ट भी नहीं होगा। एक्नॉलेज तो करना ही चाहिए, कम्युनिकेशन तो पूरा तभी होता है। तो ये चीजें होती है हमारी। एक और क्वेश्चन पूछा था पीके सर ने, हाउ टू क्लियरली व्हाट इज ऑन योर माइंड इन पब्लिक सेटिंग विदाउट हेसिटेशन, कॉन्फिडेंस लेवल। क्लैरिटी, हेसिटेशन तभी होता है, क्लैरिटी नहीं होती है जब।
सर मेरा एक क्वेश्चन, मेरा एक वो रहेगा, क्या बोलते हैं, मैं चाहूंगा कि सर आप कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें, बी इट बहुत बढ़िया, रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे। एक ही लाइन में बता देता हूँ मैं, जो मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में, सोशल में। एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज्यादा यूज हम व्हाट्सएप कर रहे हैं आजकल, ये नंबर 1 पे है व्हाट्सएप। और एक बात कहने के लिए 5 मैसेज भेजते हैं हम। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो यही था। वो होता क्या है कि अपनी बात हम कैसे कहें, बिना सोचे समझे बोलते हैं, जल्दी में बहुत है ना, हम हरिड में बात करते हैं हम। तो क्या होता है, आधी बात से पहले ही क्लिक हो जाता है वो, कभी गलती से आता है, कभी जान के कर देते हैं। फिर क्या होता है, उसको 4-5 टुकड़ों में वो मैसेज जाता है। एक ही लाइन में समझना चाहिए कि सोच के बोलेंगे तो गलती कभी नहीं होगी इस तरह की। फिर वही चीज पूरी सोच के लिखेंगे तो टाइप करके जा सकता है ना मैसेज एक ही लाइन में, पर हम वो 4 लाइनों में भेजते हैं टुकड़ों में। 3-4 तो बड़ा नॉर्मल चीज हो गई है ये भी रिसर्च भी कहती है व्हाट्सएप की कि 4 to 5 पीसीज में जाता है कम्युनिकेशन हमारा, एक बात कहनी है तो। और कन्वर्सेशन चल रही है, कितने कम्युनिकेशन होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में व्हाट्सएप पे होता है सुबह शाम तक, लेकिन ऑल ब्रोकन कम्युनिकेशन। यानी एक बात कहने के लिए 3 मैसेज, 4 मैसेज, 5 मैसेज जा रहे हैं, जो गलत है। ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जल्दी में बहुत है, आंसर देने की जल्दी है, बहुत जल्दी सोचते नहीं है। बात सारी थिंकिंग की आती है, सोच के लिखेंगे कभी मिस्टेक नहीं होगी, सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन हमारा परफेक्ट हो जाएगा, हाईली इम्पैक्ट। और उससे नजर आता है कि सामने वाले बंदे के कम्युनिकेटिव जो है वो स्ट्रांग है कम्युनिकेशन। चलिए, सबको अच्छा लगा, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और थैंक यू फिर सर। अगले तो प्रोग्राम थैंक यू। में अभी एक अभिषेक, जी एक मैं अनाउंसमेंट अगले सेशन की कर दूं। ये हमारा जी रूट्स एंड विंग्स का, जिसका नाम सुभाष मलिक जी द्वारा दिया गया है। तो हाँ नेक्स्ट जी सेशन हमारे अगले शनिवार को 27 जुलाई को अ, इसी तरह समय रात के 9 बजे ऑनलाइन सेशन रहेगा। और टॉपिक हमारा है फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जी फॉर्मल एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसके ऊपर बहुत हम अच्छा सेशन लेंगे। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट, कॉपी पेंसिल लेके बैठे, अपने सवालों के साथ तैयार रहे। और सेशन लेंगी जोया रसूल, जो कि लंदन से या यूनाइटेड किंगडम से ये सेशन लेंगी। तो आपको, आप सबका हम स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप भी ज्वाइन करेंगे और अपने जैसे और मित्रों को भी सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे। यस अभिषेक, ओवर टू यू। Thank you, ma'am, for the information, and thank you, sir, for engaging the students and answering each and every questions. और आई थिंक काफी अच्छा सेशन रहा हमारा ये। सो आपसे भी सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने एक बार वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड पर्पज के लिए एक फोटोग्राफ ले सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। जल्दी से अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। So thank you. I'd like to invite Sanju for a word of thanks. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ज्योतिका मैम। अच्छा प्लीज, एक और रिक्वेस्ट थी, आप जब अपना ज्वाइन करते हैं अपना नाम लिखिए और कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वो भी लिख देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपने नाम के साथ आपका जो शहर है वो साथ में ऐड कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। संजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, सो मैं कर देता हूँ। सो Good evening, dear friends. Good evening, dear friends. यस संजू, हम सुन पा रहे हैं। Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our whole team of the Saksham Rozgar Society for putting in so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to Subhash Malik sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with a valuable tips for impactful communication. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participate in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge
The president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, conducting the root and wing session and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you a good night. Good So night, all of thank you. you Thank you, everyone for everyone. joining this session. Thank you, And good night, sir, all of you. Subhash ji. It was a And wonderful thank you, sir, session. for Thank you, coming. Jyotika ji. Thank you so much. Wonderful session. It was really amazing. Like we all मैं और भी enjoyed. करूंगा हाँ, और भी करूंगा आगे अभी. जी जी. Thank you so much, everyone. Thank you, जी, सुभाष जी.